When you were 12, what did you see? I had the psychic abilities since my childhood. I randomly started with me seeing shadows, then hearing things in my own house, but which were never there. Most challenging चीज जो आपने एक haunted location में देखी है? Usually, when I go for investigations, my wife knows that I'm at work. So she also will never ask me. And we were at the haunted location. वहाँ पर बहुत दुष्कर्म हुए थे with lot of ladies. And when I went inside that place, उनमें क्षमता होती है that they went through my mind and they contacted my wife because मेरा thoughts जा रहा था. And my wife called me at that point in time. एंड दैट टाइम आई गॉट टू नो कि नहीं, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते हैं बिकॉज अगर ये उसके माइंड तक पहुंचा है तो वहाँ पर भी वो तांडव नचा सकता है. What happens when a person is possessed? वो पोसेशन 99% ऑफ द टाइम वो कुछ भी बाहर कुछ आपको दिखेगा नहीं, ऑल इनसाइड. दैट पर्सन में टॉक इन डिफरेंट साउंड, सुपर ह्यूमन एबिलिटीज वो एग्जिबिट कर सकता है. And one of my first cases was again another lady who, came in from the Middle East, and even she acquired superhuman strength. So the whole family holding her, and she was like throwing them left, right, and center. It was scary. Most haunted location you have ever been? I will say it was used as a church, but alongside there were wrong practices happening. There was a doctor who was using it for wrong practices. To know how and life beyond death is, he was using people as his experiments and was killing them. And because of that, right now the hauntings are very active वहाँ पे, because apparently वहाँ पे the priest का soul is also there, the doctor का soul is also there, and the ones who were the victims, वो लोग भी है. The victims are still under control of that doctor. Do you think some paranormal cases would have scientific reasoning also? 90%, 99% of the times it has scientific reasons. This is शनिवार वाड़ा. शनिवार वाड़ा सबसे बड़ा एग्जाम्पल. Most difficult entity you encountered? I will have to answer this very carefully. आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मीनिंगफुल और इंसाइटफुल पॉडकास्ट लाते रहे. Enjoy the show. Today we are doing a panel podcast for the first time, and I'm glad that you guys are here with us. So I'll quickly ask you about your intro because for the audience we need to give them what you literally do in the field. Okay, so we would start with Savio, please. Basically, I'm an exorcist. I started as an exorcist in the paranormal field. Otherwise, before that, I was into profiling, handwriting analysis, and a lot of other things. But in the paranormal field, I'm primarily an exorcist. And then afterwards, I extended that knowledge into paranormal investigation. So wherever I go, I conduct paranormal audits just to know what makes a place more haunted. I've worked with different teams. But my way of paranormal investigation right now is very much refined and very much different, unique from. I've never seen this kind of investigation being carried anywhere. Ashwin. So thank you so much, Bhavin, for calling me again. So I'm Ashwin. I'm a parapsychologist. मेरा मेन फोकस इस चीज़ पर रहता है कि जब भी कुछ पैरानॉर्मल इवेंट होता है या फिर जब भी कुछ क्लेम होता है, पैरानॉर्मल या पैरासाइकोलॉजिकल क्लेम्स होता है, तो मेरा सबसे प्राइमरी वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर माय प्राइमरी वे एट लुकिंग एट दिस थिंग इज़, पहले हम इंसान को मेजर करते हैं. वील लुक एट द ह्यूमन बीइंग दैट इज़ एक्सपीरियंसिंग दिस फिनोमेना. लेट्स मेजर दैट ह्यूमन बीइंग कि वो इंसान के अंदर क्या क्या हो रहा है. बिकॉज प्राइमरीली लोग मेरे पास हेल्प के लिए आता है कि आई एम फॉलन इन टू दिस थिंग, मेरे पीछे ये हुआ है, मेरे पे किसी ने कुछ किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई वर्क इज़ टू मेक श्योर द पर्सन जो मेरे पास आया है, दैट पर्सन इज़ ओके, दैट पर्सन इज़ टेकन वेल केयर ऑफ. एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन न्यूरोलॉजी टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ हैपनिंग इन साइड अ ह्यूमन बीइंग एंड दे आर गोइंग थ्रू दिस थिंग. एंड देन यही पैटर्न यूज़ करके उसको सॉल्व करना या फिर उनको हेल्प करना. दैट इज़ माई प्राइमरी गोल एंड दैट इज़ व्हेयर आई एम लुकिंग एट फिलहाल तो. Alright. Yeah, Jia. So firstly, thank you for having us here. I am Jia and I work as a psychic and a paranormal investigator. My major work is solving cases, people who are facing paranormal encounters. My first thing is to debunk all the possibilities of it being paranormal
And then what's left, that's what I investigate and help the people also and the souls also. Jia, when did you start practicing psychic abilities or psychic cases? How did you go about it? I for the psychic part, I never started it from myself. I had the psychic abilities since my childhood. So Okay. जब मैंने देखना start किया, I was 12 or 13 something when I started seeing things like shadows or spirits or anything. But then later on, as I got into the research part, फिर realize हुआ कि there is much more into it, and that's when I was like 15 when I started properly researching and working on the psychic abilities part. Sorry, I'll have to ask you, uh, when you were 12, जब आप 12 साल के थे, what did you see? मतलब if you can elaborate that. I never had a particular day. It just randomly started with me seeing shadows, then hearing things in my own house, but which were never there. So at first, I thought it might be just me hallucinating. But then, as I started decoding it, people around me, like my family members, also started seeing the same things. So that's when I thought कि hallucination नहीं है, and it is real. And but that time it was mostly fear. Like what I was experiencing was all fear, so I couldn't get over it that time. Yeah, it was never a specific case or anything. It just started very randomly. Like psychic part was never planned. Okay, Jia, most haunted location you have ever been? I will say Nainital about church, about Mount Church. Yeah. So what is that? मतलब So it was used as a church, priest normal जैसे church रहता है, but alongside there were wrong practices happening, like while it was functioning as a proper जैसे जो वहाँ पे एक priest था, he was doing all the prayers and everything, people used to come there and everything. There was a doctor who was using it for wrong practices. To know what how and life beyond death is, he was using people as his experiments and was killing them. So Okay. that is, and because of that, right now the hauntings are very active वहाँ पे, because apparently वहाँ पे the priest का soul is also there, the doctor का soul is also there, and the ones who are the victims वो लोग भी है. And even today, when we go and investigate, the victims are still under control of that doctor. Even the priest was made उस time पे when it was all functional, the priest was forced to help the doctor. And even today, he is scared of that person and he is still under pressure. So that's why there are like multiple entities and the one powerful entity who's controlling them all, who's using those entities to scare away people who's trying to ever अगर वो जगह चालू भी करनी हो या टूरिस्ट भी जा रहे हो उधर, तो no one stays there after like थोड़ा सा डार्क होने के बाद, because then the place starts getting active and then people start sensing things. So that's, I think, one of the most haunted and quite active locations, I would say. Not haunted, I think most of the locations are haunted, but quite active, जहाँ पे बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे थे, responses आ रहे थे, even for psychic and even on devices. So you went there for an investigation? Yeah. Did you observe the voices or you see the flashes? There is one method known as tiptology. So there we used tiptology. हम लोगों ने सब लोग शांत हो गए थे and we were asking the spirits if you could use animal sounds or if you could do anything that we can except from the devices part if we get answers. So we were continuously hearing growls outside the place, like just immediately बाहर खिड़की से आ रहे हैं. Then we were hearing knocks on the door. We had like closed the church का जो door था, we had closed it, but we are like continuously hearing proper knocks on the doors. So that is one thing which was quite active. Tiptology इतना usually quickly answers नहीं आते हैं, but वहाँ पे it was every single person hearing it, ऐसा था. And then again devices पे I would say कि more than devices, this time the investigation was more psychic based. Like for some reason, every other person was seeing one particular thing. It was like कि कोई तो है दरवाजे के बाहर who's trying to come in. But since we were not allowing it, it's bahar only. So that one thing was, like he said, ki it was repetitive so that we could confirm it. Ki there is one entity who's outside the place and he's like, trying to get in. So I think that can be called an act. And sir, what was your experience when you thought of, yeah, I should now start practicing it very hard? Nothing. It has been very developmental, Bhavin.
I never started really believing in ghosts and energies just like that. I mean, in fact, I keep telling people that my great grandfather was an exorcist, and that ran in the family. So he used to be, I mean, frequenting the forest and getting something from there. And his method of exorcisms were very different. That was like a kind of a, you can call it the religious form of exorcism. And growing up, the more stories I used to hear about all these things, the more I started disbelieving this. Like, yeah, critiquing this. I was more of a rational. In fact, the religion that I was born into, I have also, just stayed away from it right now. There are a lot of people who are psychologists, therapists. Yeah. Even they have to profile people. They will ask questions and will get the solution from inside. In the same way as an exorcist, you have to do the same thing. You cannot just believe in the religious kind of exorcism and झाड़ फूक करके, ड्रामा करके बोलो ये नहीं वो नहीं. हाँ, वो ड्रामा किया है, वो मैंने देखा है. But then I developed my own style of exorcism, my own science of exorcism, wherein I treat each demonic possession as a therapy, as a disease. With that note, I wanted to ask you about your first paranormal experience that you had. Because while you were reading people, you must have got so many cases out there. What was that first case that you got? So my first exorcism, if you go to see, was when I was assisting my brother. And that was like, you can say 95, 96, during those ages. What was that case? I can't really disclose that on air. But yes, it was a proper, genuine case of a lady who was possessed and who was slithering through chairs and tables, believing that she is having a serpent spirit in her. And she also tried to get up in the corner of a wall. So she had acquired certain amount of superhuman, strength. Strength. Yeah. So it is like hypnosis, but yeah, it was demonic. And one of my first cases was again another lady who, came in from the Middle East, and even she acquired superhuman strength. So the whole family holding her, and she was like throwing them left, right, and center. It was scary because me going over there, she could have hit me as well. Correct. So you have to have that certain amount of confidence, certain amount of what is that called? Precautions to be taken before you actually enter that space. But how do you control such cases? Precaution is one part, but there is also a fact that you have to control these cases, and this can't be in one go. That's what I feel. Exactly. So, You're true. So when you're first seeing those things, yeah, there is a jitter in your mind. Ki, yes, something is wrong and this is major thing. But now where do I start? What's that feel? So even if a person is claiming to be demonically possessed, you first find the origin. कहाँ से शुरू हुई इसकी बात, ये बात की? कहीं डरे हुए थे क्या? कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या उसमें? क्या ट्रॉमा था क्या? क्या अब्यूज का कोई हिस्ट्री है क्या? तो पहले वो सब देखना होता है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, कि उसके शायद से डीएनए में ही उनके वो मेमोरी ऐसी है कि उनको पहले से कोई तो फोबियाज हो, तो ऐसे ऐसी जगह पे जाएंगे और कोई तो उसको बुली करे तो वो इमीडिएटली ट्रिगर हो सकता है. तो आप पहले वो सब जानोगे. आफ्टर दैट यू सी द थ्राइविंग एनवायरनमेंट एट होम. लाइक ऑलवेज कीप सेइंग, पब्लिक जाते हैं दरबार वगैरह में सब एग्जॉर्सिज्म ये करने के लिए, डिमोनिक पोजीशन हटाने के लिए. आप जाते हो वहाँ पर तो ठीक हो, आप शायद वहाँ पर ठीक भी हो, बिकॉज उनका कैसा है, उनका थेरेपी एक ही तरह, या तो आपको कुछ पीने देंगे, या तो आपको झाड़ फूक करेंगे, या तो इंसेंस जलाएंगे आपके सामने, या तो आपको बांध के मारेंगे. उनका मेथोडोलॉजी एक ही है. दे नेवर डाइवर्ज कि हर आदमी का डिमोनिक पोजीशन अलग है, जैसे हर आदमी का डिप्रेशन अलग है. Correct. तो आप सबको वो चूरन नहीं दे सकते. तो वहाँ से चलो ठीक है, वंस इन अ वाइल कंफर्मेशन बायस वो ठीक हो भी गया, लेकिन वापस से अगर घर में आए और वापस से वही अब्यूजिव एनवायरनमेंट है, वही जजमेंटल एटीट्यूड है, तो उसको फिर से आ जाएगा वो. तो वो भी जानना ज़रूरी है. So the way to approach certain thing is like with precaution. You keep a discretion with yourself. First, know the entire surroundings. The conditions. और उसी के ऊपर फिर बाद में आप एक थेरेपी फॉर्मुलेट करोगे. आप ये नहीं बोलोगे कि चलो आज से ये किताब पढ़ो. जो 2000 10,000 साल पुरानी किताब है, वो आज पढ़ के आप क्या कर रहे हो, राइट? उसका मतलब है कि आदमी इवॉल्व ही नहीं हुआ है. Correct. Right now we have started recognizing mental health. So even now possession is accepted as a syndrome. So the therapy also has to be in congruence to that. एक थॉट मेरे माइंड में आया था while you were saying all this thing.
इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. Yes, it is. बट इसमें ये भी डेंजर होता है कि सिचुएशन वर्स्ट ना हो जाए. मतलब इट इज़ एट सम पॉइंट, इट इज़ एट अ ग्रेविटी ऑफ 5, while we are doing all this thing, it can raise it up to 8. क्या वो थॉट भी माइंड में होता है कि जब हम ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ऑल दोज एविडेंसेस, वी आर रीडिंग, वी आर रिसर्चिंग, तो एक टाइम रेस भी होती है आपके साथ? Yes, होनी और ज़रूरी है वो. If the first time a person comes and he speaks about certain things, right? You have to give him something in return at that point of time. So you have to wait till he naturally subsides and then after talk to him, भाई क्या हुआ था? Why were you acting like that? I mean, then there are methods to do Yeah, that. yeah. There are methods to. Tell me about your experience first. I know you have First spoken case, about it, yeah, but then It's yeah. just like having the podcast once again. It's Yeah. So I'll tell you something which is more. tell you something which is more like कि possessed नहीं है या फिर haunted case नहीं है. ये मेरे पास आया था, एक black magic का case है. पिछले बार भी मैंने ये चीज़ के बारे में आपको बताया था. I'll get you एक थोड़ा ज़्यादा प्रोग्रेस में. दिस इज़ माई फर्स्ट केस जो मैंने इंडिपेंडेंटली लिया है, एंड दिस इज़ समथिंग विच अबाउट दैट केस मुझे अभी रिसेंटली पता चला. सो द थिंग वॉज कि अगेन देर इज़ अ फैमिली एंड देर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग, एंड एक सर्टेन पर्सन उसमें से उनको बिलीव आता है कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है. नाउ द थिंग इज़ कि नाउ हम लोग जब भी रीडिंग लेते हैं तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन करते हैं. बहुत उनसे पहले बात करना था, जैसे कि साबिर भाई ने बताया, पहले वो इंसान का प्रोफाइलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो क्लेम कर रहा है कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है तो वो क्यों ऐसा क्लेम कर रहा है. व्हाट आर द इंस्टेंसेस जो उसके लाइफ में हुआ जिसकी वजह से वो ये चीज़ के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहा है कि नहीं मेरे पे पक्का ब्लैक मैजिक हुआ है करके. तो पहले वो प्रोफाइलिंग के वक्त जो हम लोग बात कर रहे थे, इंट्रोगेशन बोलता हूँ मैं उसको, जब मैं इंट्रोगेट कर रहा था उसको, ऐसा कोई भी ऐसा सिचुएशन उसके लाइफ में नहीं था जहाँ पे कुछ भी ऐसा ब्लैक मैजिक उनके लाइफ में हुआ हो. ऐसा कोई भी एक बड़ा सा चीज़ नहीं दिख रहा. मेजर प्रॉब्लम वो जो बंदा रिपोर्ट कर रहा है इस उनको थंब में नर्व का इशू हो रहा है, और उनका लाइफ में बहुत सारे इश्यूज, उनका बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा, उनका फैमिली लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा. तो ये सब चीज़ें उन्होंने रिपोर्ट किया था. बट जब थंब में, हाँ, you're saying थंब थंब में, हाँ, नर्व का कुछ नर्व issue का है. इशू है, और Okay. बेसिक प्रॉब्लम्स भी चालू है कि फैमिली में इश्यूज चालू है, Okay. फाइनेंशियल इश्यूज चालू है, एक्सेट्रा. नाउ जितने भी बार मैं उनका प्रोफाइलिंग करके, नाउ कैसे होता है कि ब्लैक मैजिक अगर हुआ है तो एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे तुमको कुछ एक ऑब्जेक्ट मिलता है, या फिर तुमको क्या क्या बोलता है कि ऐसा ऐसा तुम पे हुआ है, ऐसा लग रहा है, या फिर तुम्हारा फेस देख के लग रहा है किसी ने तुम पे कुछ किया है, तुमको कुछ अटैच हुआ. कोई तो एक ओपनिंग पॉइंट आपको देता है, देन यू टेक इट, यू बिलीव इट, एंड देन वो बिलीव आपके अंदर आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा चेंजेस क्रिएट करता है, इवन इफ ब्लैक मैजिक नहीं भी हुआ रहेगा. नाउ इन दिस केस दिस पर्सन, इनको 100% बिलीफ है कि उन पर ब्लैक मैजिक हुआ है. इवन तो आफ्टर प्रोफाइलिंग मैं उनको बोल रहा है कि ऐसा कोई भी एंट्री पॉइंट या फिर प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा है विच इज़ रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक और समथिंग एक्सटर्नल. मेजर प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ आपका हाथ का इशू. ये कोई आपको मेडिकल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, उनको कंसल्ट करो. कुछ तो नर्वस इशू रहेगा, वो उनको ठीक करेंगे. देयर आर इंजेक्शंस जो 2500-3000 रुपीज़ का रहता है. यू गिव अ शॉट एंड देन उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम रहता है इट गेट्स सॉल्व. ये बंदा मानने को ही तैयार नहीं है. ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी अगेन कि नहीं आपको पता है क्या, नहीं आई थिंक आपको चीज़ें अच्छे से पता नहीं है, आपको रीडिंग अच्छे से पता नहीं है करके. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कन्फर्मेशन बायस नाम का जो चीज़ है वो इस बंदे के अंदर इतना ज़्यादा घुस गया कि नो मैटर वॉट आई विल डू, नो मैटर कितना भी मैं उसको प्रूफ दूँ, वो यही बोलेगा कि नहीं मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, दूसरा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है. ये भी उसका ही रीज़न है, ये भी उसका, मतलब द फैमिली प्रॉब्लम इज ऑल्सो द सेम रीज़न, यानी हाथ का भी सेम रीज़न है. नाउ जब ये ऐसा एक केस आएगा तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. मुझे समझ नहीं रहा था कि इनको कैसे समझाओ या फिर हाउ टू. अभी क्योंकि अगर मैं ब्लैक मैजिक बोल के केस ले रहा हूँ तो मैं झूठा हो गया, क्योंकि मेरे खुद के कंसाइंस में मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि ठीक है ये ब्लैक मैजिक वाला केस नहीं है, देयर इज़ नथिंग जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, या फिर कोई साइंस नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं है. स्टिल ये बंदा बोल रहा है. नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको उस कन्फर्मेशन बायस के साथ थोड़ा एग्री करना पड़ता है. आपको एग्री करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है चलेगा.
Why? What's the reason? There's sometimes when people really don't want to believe that उनका घर भाई कुछ हॉन्टिंग नहीं है, तो कभी कभी ऐसा करना होता है कि बोले एक काम करो, एक तांबे के बर्तन में थोड़ा बोल में थोड़ा पानी भरो और उसके अंदर एक नीम का पत्ता उसके अंदर डालो और थोड़ा नींबू छिड़को और 1 घंटे के बाद मुझे बताओ, उसका रिपोर्ट दो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यस अब ना, अब आपको पता है उसका घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव इन्वेस्टिगेटेड, यू हैव सीन दैट ओके फाइन, कोई डेटा राइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, बट अभी उनको कन्विंस कैसे करेंगे? अभी उनको यही इसमें बिलीव है, राइट? तो यू विल हैव टू डू समथिंग लाइक दैट। जैसे बच्चा भी बोल रहा है कि मेरा पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, और को पता है कि भाई इसने कुछ नहीं खाया, कुछ सब ठीक है। सो आप उसको भले ही आपने एक कैल्शियम सैंडोज की एक टैबलेट दे दी और बोला अभी सब ठीक हो जाएगा, उसका बिलीव से वो ठीक हो जा रहा है, दैट्स प्लेसिबो। Yeah. तो सेम थिंग हैपेंड, यू हैव टू, मुझे उनसे बोलना पड़ा कि ठीक है लेट्स चेक क्या है क्या नहीं है, बट इसके लिए भी प्रोसीजर में मुझे सबसे पहले आपका मेडिकल रिपोर्ट लगेगा, क्योंकि हम लोग मेडिकल रिपोर्ट जब तक हाथ में नहीं आता तब तक हम लोग इसके केस को लेके हम लोग आगे नहीं बढ़ते। दैट पॉइंट में वो बंदा वो एग्री किया मेरे से कि ठीक है चलेगा, नाउ आई विल गो टू अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। 2 weeks into this एंड आई हैव डन नथिंग। वो सिर्फ वहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास गया, उसने मुझे मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं भेजा। 2 weeks लेटर वो बंदा मुझे आके बोलता है कि हाँ मेरा सब कुछ ठीक हो गया, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। एंड वहाँ पे मेरा हेल्प सिर्फ इतना था कि जस्ट आई एग्रीड टू दैट पर्सन कि ठीक है मैं लेता हूँ आपका केस, लेकिन मुझे बस इतना चाहिए कि आप जाके मेडिकल रिपोर्ट लेके आओ, मेडिकल रिपोर्ट मिलेगा नहीं तब तक मैं कुछ करूँगा नहीं करके। एंड दैट्स ऑल द केस। सो दिस इज़ वन ऑफ द केसेस जो मेरा एकदम स्टार्टिंग पीरियड में व्हेन आई वाज वेरी न्यू इन दिस फील्ड तभी मेरे पास आया था। एंड तभी मुझे समझा कि इफ़ यू डिनाई, सामने वाला भी आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है, एंड इफ़ यू डिनाई नहीं आप पे कुछ हुआ नहीं है, तो दैट पर्सन विल वॉक अवे एंड गो एंड फॉल इनटू अ बिगर पिट। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप बुलाए उनको, आपके साथ उनके साथ बैठ के बात करें, एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू एंड ट्राई टू हेल्प देम। Have you helped any entity to get released? Every day it started a few years ago when I started observing that souls enter my house and they come for help. It's like an affinity I have, so they got to know that okay fine, I can actually help them. And I always keep telling these people, so these people are aware of that. Whenever we go anywhere, I'm the person who eats the least. Why? Because my consumption is not just oral. It is coming from these entities, these souls which are ascribing me their power. There are some souls who are damaged, so they will take from me and they will go towards the light, they'll cross over, they'll get over with. But there are some entities who are just lost, but they have a surplus. So before they go, they give you the power, the source. And that's like a kind of a symbiosis. So yeah, I have helped a lot of entities being released, even in the paranormal realm and even from haunted places as well. Your first experience, what was it? Very basic case it was. It was one of my friends' case only. They were planning to get a land actually. And it was my first psychic case, I would say, where I did not use proper investigation, but it was purely psychic based. So they were like, "Ki, we are planning to get this land in Pune is one of the area, and it is a very beautiful area. Like pura tabletop land hai, and then there's nothing, pura khali area, hai, and it's all like at a hilltop, amazing place." And he's like, he just went to like, he's like, "Tu ek baar aake dekh le, you will also like it. We can just plan things. यहाँ पे मस्त अच्छा होगा." I'm like, sure. The moment I just got out of the car, I just felt something off, thoda sa. You know, you just feel the energy ki, even though it is like pura open space, there's like air and everything, I just felt a bit dense, you know, thoda sa heavy. And there was this one tree, I don't remember which tree exactly it was, but it is meant to be very pure. Like हिंदू में सब लोग बोलते हैं कि it is very pure and you आप पूजा करो उसकी, it is very nice and everything. I don't exactly remember the name. So it's like, but the very first thing, I just go, and the first vision, I just get a flash of vision. I see a hanging lady वहाँ पे. I was like, okay. I did not tell him anything at the moment. When I just took my readings. I just kept it to myself. I took few pictures and everything. And since that was the start of my journey, I got it confirmed from Savio sir. I had sent him the pictures and everything. And I did not tell him my readings. I was like, I'll just ask him, sir, what do you see? He said the exact same thing. And now before I go to the person and ask him, do you feel anything? I just ask him, can you just do a background check एक बार? I did not tell him कि ये ऐसा feel हो रहा है. I'm just like कि
एक बार पेपर्स एंड ये सब चेक करने के लिए जस्ट आस्क यू व्हाट इज़ द स्टोरी लोकल से थोड़ा सा कि सेफ होना चाहिए. He goes there and he's like, I cross-checked, bro, you won't believe क्या है उधर. The owner of the house, owner of the land, उन्होंने छीना था वो ज़मीन एक lady से. She was quite old lady and she had nowhere to go, so she had suicided on that tree. Oh. And I never shared anything. Like मैंने उनको बोला भी नहीं था कि I am sensing anything. He just comes up. He's like, bro, तू यकीन नहीं करेगी कि मैंने मतलब क्या मिला मेरे को. And then I tell him the whole thing कि I feel like कि you shouldn't get this land because the thing is जो lady, she the one who passed away due to suicide, she did not have that will. I just could feel it कि she doesn't want to give up her land. It was her hard earned land. So she was not ready. और अगर ये खरीद भी लेता तो in future there would have no progression or no positive results. Yeah. So that's why I was like, listen, it's better if you don't. And apparently, whenever he tried to do the paperwork, whenever he tried to finalize the things, something or the other kept happening. Once he also got into an accident while going to confirm the land. we So were that's the sign. Exactly, the signs were showing up कि मत कर तू ये मत कर. नहीं, I just wanted to understand there is a very significant and very interesting thing that she mentioned that जब ऐसा कुछ होता है she was feeling very dense and there is a flash of second a image comes in your mind. Did you realize that ये ही ability है जो मुझे पहले भी हुई थी and this is confirming that now I have a different thought process or a vision? So the moment of confirmation I felt कि this is my ability was when I got a story from him also. When I was like कि let's check myself also. I'll test myself. So what I did was I just shared him the pictures. He told the exact same thing and I shared this with my mom also. So she's like कि तू तेरा मत बता, just get to know क्या हो रहा है. I just read it out and she's like, you get your confirmation. And that was the moment I felt कि maybe what I am doing is real and what I am doing and seeing things should be counted true. Okay. See, we have a WhatsApp group on which we logically discuss all these things. This ability is claircognizance and clairvoyance. The flash that came to her was clairvoyance because she could see something. और ये ना कोई मनगढ़ंत ये नहीं है, एबिलिटी नहीं है. क्लियरवॉयंट का मतलब है क्लियर सीइंग, सो यू कैन सी क्लियरली. तो अपने जो आई बॉल्स हैं ना, आई बॉल में एक सीमित जगह तक आपके नर्व एंडिंग्स रहते हैं, राइट? Okay, उसके yeah. पीछे फिर बाद में आपका ऑप्टिकल नर्व से आपका ये चला जाएगा, ब्रेन तक चला जाएगा. अभी आगे रेटिना है, राइट? यहाँ से अगर क्या बोलते हैं उसके अंदर प्यूपिल है, यहाँ से अगर जब अंदर रोशनी चली जाती है या कलर्स चले जाते हैं तो इट हिट्स ऑल द नर्व एंडिंग्स हियर, राइट? इफ इट हिट्स ओवर हियर देन आपको ब्लाइंड स्पॉट मिल जाता है बिकॉज यहाँ से चला जाता है. बट ज़रूरी नहीं है कि आपके नर्व एंडिंग्स जो है सर यहीं से शुरू होते हैं, यहाँ से भी शुरू होते हैं, लाइक जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया. तो यहाँ से भी जब है ना तो कुछ कुछ लोगों का वो प्रोनाउंस्ड होता है कि वहाँ तक भी वो लोग सेंस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम प्रोबेबली एनामली और समथिंग दैट द लाइट इज एबल टू बेंड इनसाइड आपका लेंस का कुछ इसकी वजह से कि अब लाइट अंदर बेंड होके वो नर्व एंडिंग्स को भी टच हो रहा है. सो ये लोग जो है ना इनको थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट्स एंड कलर्स विजन्स दिखाई देते हैं, जैसे एनिमल विजन होते हैं, फिश आई विजन होता है, तो इनको थोड़ा ज़्यादा कुछ ये बोलता है. सेम थिंग अबाउट द ऑडिटरी एबिलिटी, इट्स नोन एज क्लियर ऑडियंस. सो आपके पास वो क्षमता है कि आप थोड़ा फ्रीक्वेंसी से नीचे इंफ्रासोनिक और सुपरसोनिक आप कुछ तो सुन पाते हैं, राइट? सो ये लोग कुछ ज़्यादा कुछ देख पाते हैं, ज़्यादा कुछ सुन पाते हैं, और वो एबिलिटी एक्चुअली इज़ अ रियल एबिलिटी. इट्स नथिंग लाइक मनगढ़ंत की मैं आज से सोच दिया हाँ मैं क्लेयरवॉयंट तो मुझे आज से आ गया. ऐसा रहेगा कि आप ऑनलाइन कराटे सिखा रहे हो, वो तो नहीं होगा. सो यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू सिट इन द डार्कनेस फॉर आवर्स, यू हैव टू टेस्ट योर वाटर्स, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? पिन ड्रॉप साइलेंस में आपको कुछ सुनाई दे रहा है, आप कैसे क्या ये करोगे? The ability of a clairvoyant is first of all not just observing, also understanding what is observing. लोग पागल होते हैं नहीं तो फिर अगर if you see something बोलते हैं, there are people who come and tell me, please I don't want this ability, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगी. मैं बोला अरे यार this is a gift. I mean it's a gift, you have to use it. But then उनका psychology ये होता है कि why me? Because I do not want to go beyond my ability and it is they are in always a denial mode कि हाँ ये naturally आ रहा है but then I do not want to see those things. ये एक fact हो सकता है उनके end से,
But then after that is dumbing you down, no? कि Yeah. आपको IQ ऊपर वाले ने दे दिया विरासत में 150 160 का, और आप फिर भी बोल रहे हो नहीं 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 नहीं, मुझे I तो don't पूजा want पाठ में इंटरेस्ट I आता think है. I will actually add on to that. जब initial stage था when I actually started नया seeing, I did that thing कि why me? Because that time I had a lot of fear. मतलब मैं तो light खुला करके मतलब पूरा on करके सोती थी, मम्मी को छोड़ती नहीं थी, ऐसा था मेरा situation. So I did doubt कि why me only? I don't want to see things. मेरे को तो कभी चाहिए भी नहीं था. I used to try to deny the fact they exist करके. Yeah. But later on, when I started researching about it, I got to know कि it is a very special gift and not everyone is chosen for it. Correct. And if I'm able to help the souls also, why not? If I'm able to contribute to the both worlds, then why not? Then that's when I was like, कि I should take it as a blessing. That's right. Ashwin, now I want you to let everybody know about the difference between a paranormal investigation and parapsychology. Basic. Paranormal investigation, parapsychology. The word itself says that. Paranormal investigation is more towards कि हम लोग external stimulus के तरफ हम लोग concentrate कर रहा है. जैसे कि वो जगह में ऐसा क्या है कि हम लोग वो जगह पे एंटर कर रहे हैं तो अपने को स्टैग्नेंट, जैसे जिया ने बोला कि वो जगह पे एंटर किया तो तुरंत वो डेंसिटी फील हुआ. तो क्या है उस जगह पे? व्हाट आर द इयॉन्स दैट आर मेकिंग दिस चेंजेस? वो सब आयॉन्स, सॉरी, व्हाट आर द आयॉन्स विच आर मेकिंग दिस चेंजेस? अभी मेन चीज़ है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग वो बाहर का चीज़ें सब इन्वेस्टिगेट कर रहा है. पानी हो सकता है, वो धूप हो सकता है, एनवायरनमेंट, हवा, सब कुछ, घास फूस, सब कुछ हम लोग चेक कर रहे हैं. Whereas parapsychology, it's more towards inside, internal working of a human being when they are in the same phenomena. हम लोग अभी ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के वजह से ये इंसान को इफेक्ट हो रहा है. पैरासाइकोलॉजी बताता है कि क्या क्या इफेक्ट हुआ करके, कि अंदर उसके दिमाग में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके अंदर वो फियर ने क्या क्या ट्रिगर किया, उसके अंदर का माइक्रो मसल मूवमेंट्स जो उसके बॉडी में हुआ, उस चीज़ को वो एक टच करके परसीव कर रहा है क्या, या फिर कौन सा भी एक दूर से भी छोटा सा आवाज़ आया तो उस बिकॉज ऑफ दैट डर एंड दैट हाइपर अलर्टनेस वो आवाज़ भी हम लोग उसको भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्या. ये सारा जो सीखना है इंसान के बारे में, दैट इज़ पैरासाइकोलॉजी. लुकिंग एट द सेम फिनोमिना फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स, कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक्सटर्नल स्टिमुलस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है एंड पैरासाइकोलॉजी है वो इंसान के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस या फिर क्या क्या हाँ क्या क्या चेंजेस आ रहा है वेन एवर दे आर गोइंग थ्रू दिस फिनोमिना. दैट इज पैरासाइकोलॉजी. Jia, have you felt physically drained when you communicate with any entity or a spirit? What's the state of mind after communicating with them? I think for that matter, every investigation अगर जाए, like he said कि there are few damaged spirits also that take energy from you in order to give answers or give responses. So I think when we do psychic readings, in a way you are exchanging energies. It's like when you go there, you give them energy, you give them that thoda sa power कि if I'm giving you something, you show me, you manifest yourself, you help me get to know कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है. So after the investigation, obviously it feels a lot drained. So have you, whenever you go to a paranormal investigation, there is also a scouting which happens. Can you tell the audience what is scouting all about? Yeah, peripheral audit, scouting, everything is like that. I mean, the same thing. When we go for famous places, like if you go to Kuldhara, you go to some fort where people have claimed that that is haunted, right? There is something known as a peripheral audit that you have to do, a scouting that you have to do, go around that place and get to know everything about it, right? If at all there is some high tension wire that is going past through it, or is there some under the surface layer of water which is causing some stagnancy and a kind of bacterial discomfort. So you have to do all these things. What kind of materials are making that? Is it red laterite? Is it yellow sandstone? So what is the capacity of that place to store data? So right now, I mean, as I say, I mean, when I speak with you, right, the voice is hitting, the vibrations are hitting the diaphragm, it is getting stored somewhere. Same thing in our ears. We have a diaphragm, so when I speak, it gets vibrated and it gets stored somewhere, right? And we can play back, we can paraphrase everything. But it's not necessary that whatever we're speaking is only going to the diaphragm and the ear. It is going to every other surface around over here. So every surface has a capacity to store data, right? But the problem is we don't have the technology to decode the data. So a peripheral audit or a scout
A peripheral audit or a scout is that way wherein you look at every material and look at everything that is happening around over there. Probably there is an EMF pollution. Probably, I mean, किसके घर पे चले गए तो उसका जो इन्वर्टर का बैटरी है वहाँ से EMF आ रहा है, तो वहाँ से जो भी कुछ गुजरेगा या वहाँ पर झुक के अगर समझो मूड हो रहा है, उसके ऊपर इन्वर्टर की बैटरी है, तो उसको हेलुसिनेशन होगा. उसको ऐसा लगेगा कि आईने में कोई तो देख रहा है, मैं जब झुक रहा हूँ तो कुछ तो पैराडोलिया हो रहा है वहाँ पर, राइट? तो वो सब पहले देखना होता है. दैट इज अ स्काउटिंग दैट वी टॉक अबाउट. And it is also been said कि there are symbols which are already there. जहाँ पे भी आप इन्वेस्टिगेट करते हो, अगर there are symbols, so you guys also read those symbols also? सिजल्स एंड सिंबल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अपने को जब ये इन्वेस्टिगेट करने को जाता है तो इट डिनोट्स, अगर हम लोग को सिम्बोलॉजी पता है, सिजल्स कैसे पता करने का, वी अंडरस्टैंड कि वो एक सिजल देख के वो क्या है अपने को पता चल गया, तो वो क्यों है वहाँ पे वो भी समझेगा और कब है वहाँ पे वो भी समझेगा, एंड व्हाट इज ट्राइंग टू टेल. इसीलिए सिम्बॉल्स इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हम लोग समझो कि इफ़ देयर इज़ अ फोर्ट, जहाँ पे बहुत साल पहले बनाया हुआ फोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने कुछ तो सिंबल बनाया है. व्हेन आई गो टू दैट प्लेस, जब मुझे वो सिंबल दिखता है तो मुझे समझ में आता है कि ये क्यों, वहाँ पे क्या मीन हुआ है. इज इट हैप्पीनेस, इज इट प्रोटेक्शन, वो समझ में आता है. तो प्रोटेक्शन है तो अपने को समझ में आता है कुछ तो एक एक्सटर्नल थ्रेट से वो लोग बचना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रोटेक्शन का सिंबल लगा. तो ऐसा हम लोग सिम्बॉल्स को एंड सिजल्स को, इफ़ यू ट्राई सिट एंड उसको डिकोड करने का कोशिश किया, तो इट हेल्प्स यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई इज इट देयर, कब से है वहाँ पे, एंड कौन सा पीरियड का जगह है. बहुत सारी चीज़ अपने को सिम्बल्स में पता चलता है, सिम्बल्स एंड सिजल्स से. A lot of mudras, a lot of these coat of arms which are there on some certain graves of certain colonels and all, army admirals and all. So उनका भी एक ये रहता है, उनका एक इम्पोर्टेंस रहता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर जूस को अगर नाजी सिंबल दिखाएंगे तो उनको इमीडिएटली चिढ़ मचेगी, राइट? सो दिस सिंबल्स हैव अ मेंटल इफेक्ट अपॉन यू. Alright. Jia, I wanted to ask you one thing. What is the misconception that people have about psychics? The common ones that you must have gone across. If I'm being introduced as a psychic, the first thing that people ask me is, हमारे आजू बाजू कुछ दिख रहा है, मेरे अंदर भूत है. And then another thing, I think this is the very big misconception. Whenever you tell someone you are a psychic, the first thing they associate you is with black magic. Okay. Ki if you're a psychic, that means you are into black magic, black arts, and that means you deal with evil spirits and something. And that's not at all true. So that's the biggest misconception, I think. कुछ भी psychic हो, you just directly connect it with the negative side. कि ऐसा ही है, you're into evil, you're into this and that. And I think people have made the psychic term, they just exaggerate it a lot. I mean, to be very honest, being a psychic, it is very subtle. You don't see things एकदम से कि आके कोई तो खड़ा हो गया. You don't see it that way. I think psychics के लिए सबसे easy term, if people take it that way, it's just a sixth sense. I mean, yeah, every As simple as person that. has like 5 physical Yeah. senses. And उसमें एक sixth sense किसी को भी हो सकता है. एक्चुअली हमारे बदन में 27 सेंसेस है. Yeah. Oh, Sense of balance, the sense of appetite, the sense of hunger, the sense of thirst, the sense of intimacy, so many senses. लेकिन हमको सिर्फ 5 टॉपिकल सेंसेस पढ़ाए गए topical हैं. senses पढ़ाए गए. Yes, correct. So Ashwin, I would like to ask you, what are the real evidence when you go for a paranormal activity or a research that you call? What are the real evidence look like? आई विल हैव टू आंसर दिस वेरी केयरफुली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि कोई भी रैंडम फोटोज, जो ब्लरी फोटोज है, ब्लरी वीडियोस है, वो एविडेंस नहीं है. वो बस एक ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है कि ये हुआ, अब हम इस पे स्टडी करेंगे. मेरे लिए एविडेंस वो चीज़ है जो स्ट्रक्चर्ड रहे, जो मेजरेबल रहे और कंपेयर करने को होना चाहिए. मतलब 3-4 लोगों के साथ कंपेयर करने को होना चाहिए वो चीज़. दूसरी बात, वो मेजरेबल होना चाहिए. वी शुड बी एबल टू मेजर, तब जाके उसको एविडेंस करके हम लोग बोल सकते हैं. और मेन चीज़ रिपीटेबिलिटी. हाँ, वो भी एक चीज़ है जो होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू रिपीट इट. अभी जैसे कि एक हॉन्टेड स्पेस है, एक हॉन्टेड स्पेस में मैं गया एंड वहाँ पे मैंने एक इन्वेस्टिगेशन किया, एक टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया, मैं रिटर्न आया. सेकेंड पर्सन वहाँ पे जाएगा, वो सेम टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन करके उसको वो सेम आंसर वहाँ से आना चाहिए. फिर थर्ड पर्सन भी गया, फोर्थ पर्सन भी गया, उनको अगर वो सेम आंसर वहाँ से आ रहा है, देन दैट्स एविडेंस.
नहीं तो वो सिर्फ एक अनोमली हो गया, मतलब इट्स जस्ट देयर, वो हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, वो पता नहीं चल रहा है. सो फॉर मी एविडेंस कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड रहेगा, जो हम लोग मेजर कर पाए, कंपेयर कर पाए, और दूसरा एक जगह पे वो रिपीट भी होना चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट आई कॉल एविडेंस. उसके अलावा आपको जितना भी ये ऑब्स दिख रहा है, ब्लरी वीडियोस, ब्लरी फोटोज, अभी तो एआई का ज़माना है, इट्स वेरी इजी टू रेप्लिकेट दिस थिंग्स एंड कुछ भी कर सकते. Yeah. तो उसको अगर हम लोग एविडेंस मानने लगे तो अगेन फिर हम लोग विल बी बैक टू, हम लोग 200 साल वापस पीछे चले जाएंगे, वापस उसी साई प्रोजेक्शन, साई करो, साई साई PSI में हम लोग रुक जाएंगे. तो फॉर मी इट्स मोर ऑफ लाइक इट शुड बी, आपको एविडेंस वाला एविडेंस डेटा रहना चाहिए आपके पास, जो आप बार बार किसी के भी सामने दिखाते हो, किसी के भी सामने बोलते हो, वो सेम रहे. हाँ, 10 लोग के सामने 10 एविडेंस अलग, मतलब 10 अलग अलग चीज़ें बोलने को नहीं. एक अगर भानगढ़ है तो भानगढ़ में मैं गया तो भी उधर वही आवाज़ आना चाहिए, सावियो भाई गए तो भी आवाज़ आना चाहिए, जिया गई तो भी उनको वो साइकिक रीडिंग वही आना चाहिए. देन दैट्स एविडेंस. फॉर मी दैट्स जैसे एविडेंस. शनिवार वाड़ा. शनिवार वाड़ा सबसे Yeah. बड़ा एग्जाम्पल है. Yeah. So it's like that. I mean, a lot of people have trivialized paranormal investigation and psychism by saying कि हमको रीडिंग आई है, कि दे गो ओवर देयर और उनको सब कुछ महसूस होता है, या तो सरफेस टच करते हैं, साइकोमेट्री बोलते हैं उससे, और बोलते हैं मुझे रीडिंग आई है. आप रीडिंग कब कर पाओगे? जब कुछ लिखा गया हो. अभी आपके हाथ में पेपर्स हैं, या कोई किताब अगर खोल दी यहाँ से, राइट, उसका अगर फर्स्ट लाइन में अगर कोई लिखा है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, आप वो लाइन 1000 आदमी को दिखाओ, वो वैसे ही पढ़ेगा. करेक्ट. देर इज नो अदर वे टू रीड इट. हाँ, आप इंटरप्रेट अलग करोगे, बट रीड तो वही करोगे जो लिखा हुआ है. आप जब कोई हॉन्टेड लोकेशन पे जा रहे हैं और हर साइकिक को पूछते हैं, तो हर साइकिक का जवाब अलग रहता है कि मुझे ये रीडिंग आई है, मुझे ये रीडिंग आई है. कि भाई तुमने रीड ही क्या किया है फिर? What was your methodology? Right? That has to be repeatable, as Shiva said. It has to be repeatable. So इसके लिए my kind of investigation, as I said, I've completely refined it in a way to know, okay, fine, ये material कौन सा है अभी और उसमें क्या reading आई है. Right? There are places wherein I've been, or there are places where are express haunted places में जाता हूँ मैं. So there are some, of course, I mean 90% cases are not haunted. बट जहाँ पर इंसान है, जहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वो जगह की क्षमता है उसको राइट करने की, डेटा स्क्राइब करने की, तो वो रीड करने की क्षमता हम में रहनी चाहिए. एज साइकिक्स, येस, वी हैव बिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग्स. सो हमको जगह का कुछ भी हाथ लगाएंगे तो उसका टेक्सचर क्या है, उसका सॉफ्टनेस या हार्डनेस क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, अगर वो गीला है कि नहीं है, राइट. जैसे नोसोसेप्टर्स बोलते हैं तो हमको पेन महसूस होता है, राइट. फिर उसके अंदर कोई स्टैटिक करंट है क्या, या कोई दूसरा करंट है क्या, ये तो हमको पता चलता है. अब यही चीज़ आपको अगर गैजेटरी में रिप्लिकेट करना हो तो कितना गैजेटरी लगेगा. सो दैट्स द रीजन ह्यूमन जो साइकिज्म बोलते हैं इज मच मोर सुपीरियर देन योर एक्सटर्नल गैजेटरी. करेक्ट. नाउ AI is catching up, but the thing is, problem is that humans are not dependable. या Right? एब्सोल्युटली. Absolutely. अगर पैसे कमाना है तो मैं कुछ भी बोलूँगा, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके हॉन्टिंग है, and then after you can't trust them. So if at all, if a person is able to read data of your surfaces and tell, okay fine, know what, ये wood में जो ridges हैं इसके अंदर data like a gramophone store हो रहा है, ये जो trees का जो annular rings है उसका surface में data है, अगर कोई porous ये है तो उसके अंदर डेटा है. जैसे कि मुझे हमेशा पता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उसके अंदर ज़्यादा डेटा स्टोर होता है. इग्नियस रॉक तो नीचे से फ्रेश होके बाहर आया है, पूरा ग्रेनाइट, बॉक्साइट, तो ये तो अलग होते हैं, तो उसके अंदर डेटा नहीं होगा. अभी वो फ्रेश है, अभी वो मेटामॉर्फाइज होगा, फिर बाद में अंदर दबेगा, तब जाके उसके अंदर डेटा स्टोर होगा. इसके लिए तो फॉसिल्स वगैरह उसमें मिलते हैं. Correct. जैसे ये बोली है कि अभी देयर वाज वन प्लेस वेयर द पर्सन वाज हैंगिंग. Yeah. सो ऑफ कोर्स उधर का जो ये है पेड़ है और जो सरफेस लेयर है, उन्होंने वो ग्लानी जो है उसको स्टोर करके रखा है. सो आप जब भी वहाँ पर जाओगे, आपको डेंसिटी, अगर आप क्लेयरवॉयंट हो तो फिर आपको दिखेगा. एंड यहाँ पे आई वांटेड टू आल्सो आस्क कि कौन सा एविडेंस ऐसा होता है जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, दैट या दिस इज द एविडेंस एंड या दिस इज द कंक्लूजन फॉर मी. मेरी छाती में धक धक हो रहा है. ऐसा अगर आप पूछोगे तो एविडेंस सबसे ज़्यादा देखो अगेन मैं एक ही चीज़ बोलेगा, बीट कौन सा भी डिवाइस यूज़ करो आप, वो EMF रहो, EVP रहो, या फिर खुद का साइकी यूज़ करो आप, रिपीटेबल होना चाहिए. दैट्स एविडेंस.
मेरे लिए तो भले वो पैरासाइकोलॉजी में देखो या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में देखो, बोथ साइड्स में व्हाट मेक्स अ प्लेस हॉन्टेड एंड व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड यू, बोथ द प्लेसेस एविडेंस आपका रिपीटेबल रहना चाहिए. अगर रिपीटेबल है, सबको एक ही जवाब आ रहा है, तब जाके मैं उसको एविडेंस बोल पाएगा, वरना मैं उसको एविडेंस कैसे बोलूंगा. मैं उसको सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलूंगा कि हाँ ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इस पर मैं स्टडी करूंगा. फिर उसके बाद ये स्टडी के बीच में मुझे वापस 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 वो मिल रहा है, तो मैं उसको एविडेंस बुलाऊंगा. बट अगर वापस वापस नहीं हो रहा तो इट्स जस्ट एन एनोमली. वो हुआ है, आज हुआ, अभी पता नहीं वापस कभी होएगा, कल होएगा कि नहीं हो, बट उसको मैं एविडेंस मान सकता हूँ क्या? मैं पूरा दुनिया में, ग्लोब में, अगर मैं इसको दिखाया कि ये एविडेंस है, कल दूसरा एक बंदा वहां पे आया, उसने बोला कि नहीं दिख रहा, वो तेरा एविडेंस गलत है, तूने एआई से बनाया, हो गया. तो इट शुड बी रिपीटेबल. I think people should move and investigators have to move beyond using EVP. I think I've discounted that right Yeah. now. EVP नहीं काम करता है. EVP क्या है? आपका रेडियो चैनल्स को स्कैन करेगा वो. Correct. सो 98.3 पे अलग, उसके बाद अलग, उसके बाद एक एक सेकंड आप स्पीड सेट कर सकते हो, राइट? तो वो प्ले हो रहा है, तो जब भी वो चैनल पे प्ले हो जाएगा वॉट एवर, वही गाना बचेगा. आपको जैसा हमको ये होता है, विजुअल पैरेडोलिया होता है. द ब्रेन इज कंडीशन टू मेक पैटर्न्स ऑफ थिंग्स. Yeah, yeah. आप डॉट्स देखोगे, पहाड़, आई मीन इसमें क्या बोलते हैं, क्लाउड्स को देखोगे, आपको पैटर्न बनाने का ये है. वैसे ही ऑडियो पैरेडोलिया भी होता है. तो आप ईवीपी को, अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन बोलते हैं उसको, ईवीपी, अगर वो उसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो रहे हो, तो आपको वो सुनाई देगा जो आपको सुनना है. दैट इज समथिंग एल्स. अभी इतने वीडियोज आए हैं वेरन यू द सेम सेंटेंस को वो जब विजुअली अगर वो दूसरा लाइन अगर देखेंगे तो आपको वो सुनाई देता है. यू कैन चेंज योर परसेप्शन. सो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ह्यूमन दिस इज़ वेरी नॉन डिपेंडेबल. तो लोग जो क्लेम करते हैं कि मुझे यही सुनाई देता है वगैरह सब कुछ है, भले आप ईवीपी करने दो या तो आप कान में डाल के एस्टेस करो, दैट इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी. दैट इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी. बिकॉज आज आप एक हॉन्टेड लोकेशन पे गए और वहाँ पर आप स्पिरिट कम्युनिकेशन कर रहे हो, कल आप वापस से जाओगे, आपको अलग आंसर मिलेगा. जैसे शिवा ने बोला है, इट इज़ नॉट रिपीटेबल. एंड एवरी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शुड बी रिपीटेबल. भले वो लैब में होने दो, कुछ भी रहने दो. इफ समबडी स्टार्टिंग अ साइंटिफिक स्टेटमेंट सेइंग दैट इट इज सेड दैट, इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसे माना जाता है, देन इट इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल. Yeah. इमेजिन आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बोला मुझे ऐसा लगता है, आप नहीं जाओगे वापस. Yeah. Of course. There has to be one concrete reason Of course. to believe. Yeah. Okay. So, Jia, do you think some paranormal cases, basically some paranormal cases would have scientific reasoning also? 90%, 99% of the times it has scientific reasons. I think, and for that matter, I think when my role majorly as an investigator is to actually go whenever I receive a case. I will check out all the scientific explanations as possible. जैसे सर ने बोला कि there are EMF pollution also happens. There are geographical conditions that also affect a person's maybe perspective or maybe visions or anything that can happen. Then again there is psychological point कि first we have to get the psychological reports of the person कि कोई वे से वो कुछ actual mental problem ना हो कि just hallucination or something. So I think most of the cases actually do have scientific reasons more than paranormal reasons. Hey, but even the paranormal is scientific. Yeah. Yes. वही तो डेटा लिखा है, तो वही तो हम लोग ये कर रहे हो. सो पीपल आस्क अस कि डू यू बिलीव घोस्ट्स एग्जिस्ट? आई से ऑफ कोर्स घोस्ट्स एग्जिस्ट. आप कोई हाई एंड गेम को अगर लो रिफ्रेश मॉनिटर वाले पे इस पे देखोगे तो आपको घोस्ट इमेजेस तो आएंगे. सो व्हाट इज घोस्ट इज ओनली अ रेजिड्यू ऑफ समथिंग दैट हैज बीन देयर. अभी हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, इट इज कॉट इन द माइक बट इज ऑल्सो कॉट बाय ऑल द अदर सर्फेसेस. तो कल अगर यहाँ पर कोई क्लेयरवॉयंट आया, क्लियर ऑडियंट आया और उसमें वो क्षमता है उसको डिकोड करने की साइकोमेट्री में, तो उसको पता चलेगा क्या है. So, Savio, I would ask you कि what is the most challenging thing that you would see in an haunted location? कोई ऐसी challenges या most challenging चीज़ जो आपने एक haunted location में देखी है? ऐसे केसेस आए थे जहाँ पर इट वाज नॉट जस्ट रेजिडुअल. हम जो भी बात कर रहे हैं डेटा स्टोर करने का, वो रेजिडुअल हॉन्टिंग बोलते हैं उससे, कि वो डेटा स्टोर्ड है और वो प्लेबैक हो रहा है. भले आपको छम छम की आवाज़ आए, पायल की आवाज़ आए, या सफ़ेद साड़ी में कोई आते हुए नज़र आए, जो भी है, कोई विंडो में कुछ नज़र आए, दिस ऑल रेजिडुअल. जब भी ये होता है तो आप आराम से वहाँ पर कोक और पॉपकॉर्न लेके बैठो और मस्त में शो एन्जॉय करो. सो बट देर आर सर्टन केसेस वेर इन द हॉन्टिंग टर्न्स इंटेलिजेंट.
So that has the ability to affect your mind as an investigator as well. Those are scary cases. जो वहाँ पर residual haunting नहीं है, but there is an intelligent entity there that has the ability to use the surroundings and then affect your mind. So at that point of time you cannot, आप 30 मार खान बन के नहीं जा सकते हो, हाँ मैंने हमेशा इतना बहुत केसेस सॉल्व किया है. I think I remember one such case. I think Shiva also was there along with me, and usually when I go for investigations, my wife knows that I'm at work. So वो टाइम मेरा sanctified रहता है, राइट. मैं हमेशा उसको उसके स्कूल में फ़ोन करके नहीं पूछूंगा हाँ जेओलिस का, वो नहीं होता है. सो शी ऑल्सो विल नेवर आस्क मी. बट देयर वाज वन सच केस जहाँ पर हम दोनों भी एक साथ में थे, एंड रैंडमली कॉल आ गया मेरे वाइफ का, एंड वी वर एट द हॉन्टेड लोकेशन. एंड उसका पेरिफेरल ऑडिट तब भी मैंने ख़त्म करके हुआ था. मुझे उसका किस्सा पूरा पता चला था कि वहाँ पर बहुत दुष्कर्म हुए थे with a lot of ladies. Okay. And when I went inside that place, you could see the entire stench. You could feel the stench of bodily fluids as well as blood. Okay. Yeah, and it told a story. That scene itself told a story. So ये अभी diabolic हुआ था और उसके अंदर एक witch का entry हुआ था. We call it a witch, but this is an evil witch. वो energy वहाँ पर create हुआ था. Why? Because of that perpetration of that crime. Okay. अब उसने क्या पता उनमें क्षमता होती है that they went through my mind, right? And they contacted my wife because मेरा thoughts जा रहा था. So they contacted my wife and my wife called me at that point in time. And that time I got to know कि नहीं, इसको आप lightly नहीं ले सकते हैं, because अगर ये उसके mind तक पहुंचा है तो वहाँ पर भी वो तांडव नचा सकता है. एंड इमीडिएटली उसके बाद फिर शिवा को कॉल आया उस केस में, जो उनको कॉल कभी करती नहीं है. तो वी सॉ द पैटर्न दैट इज हैपनिंग. यूजुअली नोबडी कॉल्स अस, हम है लावार इस वजह से. मतलब अगर काम के लिए जा रहा है, इट्स डिसाइडेड, एवरीवन नोस कि वी आर गोइंग फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड नो वन डिस्टर्ब्स. मोबाइल पे तो स्पेशली नो वन कॉल्स until and unless there is an emergency. This was a hill station in Maharashtra, and ऐसे यही नहीं है, और एक जगह पे हुआ था. जब मैं गया था उधर पे तो मुझे मैनिपुलेट करके नीचे बुलाया गया कि वहाँ से आवाज़ आई. तो मैं बोला कौन आ रहा है, तो मैं नीचे आया, देखा तो कोई भी नहीं था. सो ये सब जब मैनिपुलेशन होता है दैट इज़ ओके, बट द थिंग इज़ व्हेन इट रीचेज योर फैमिली देन इट्स अ प्रॉब्लम. एक बार हमने घर पे, अभी कोविड के टाइम पे करने के लिए कुछ था नहीं, तो मेरे नेबर्स ने बोल दिया कि एक काम करते हैं दादा, मेरे को दादा बोलते हैं, अपन आप ये सब कुछ करते हैं. एंड आई टॉट देम एवरीथिंग कि मेडिटेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है वगैरह सब कुछ. तो उन्होंने दादा अपन एक काम करते हैं, स्पिरिट कम्युनिकेशन करते हैं. मैं बोला क्यों करना है? बोलते देखो आपके साथ करेंगे तो हम सेफ रहेंगे. बोला चलो ठीक है कर लेते हैं. कर दिया. आई मीन गैजेट्री चालू किए और हम बात कर रहे हैं. अब मैंने देखा कि ये बहुत मैनिपुलेटिव हो रहा है, सबको मैनिपुलेट कर रहा है, एंड एवरीबडी इज गेटिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, वेरिड रिस्पॉन्सेज. तो मेरे को पता चला कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल एंटिटी, इट्स लाइक अ डिमोनिक एंटिटी, और वो किसी के भी हावी हो सकता था. तो मैंने फिर गैजेट्री बंद किया. मैंने बोला गैजेट्री नहीं आएगा, लेकिन एक काम करो, मेरे घर पे आवाज़ करके बताओ किधर भी, ठीक है, घर पे मेरे को वो आवाज़ सुननी है. मुझे ये गैजेट्री वगैरह वो सब वो ये अभी ये खेल नहीं करना है, राइट, ये रास नहीं करना है. तो यू मेक अ साउंड इन माय हाउस एंड शो मी. सो व्हाइल यू वर कम्युनिकेटिंग, वो गैजेट के थ्रू आपको जवाब दे रहे थे? ऑफ कोर्स गैजेट्री वो स्पाइक होता है ना, देयर आर डिफरेंट गैजेट्री. तो ठीक है, आप चाहिए तो आप प्रेशर कुकर लेके भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो. आप एक नॉर्मल बलून को लेके भी आप ये कर सकते हो. इन द एब्सेंस ऑफ अ विंड ड्राफ्ट, इफ एट ऑल अ बलून मूव्स इन अ सर्टेन वे, दैट्स अ रिस्पॉन्स, राइट. टेप्टोलॉजी बोलते हैं उसको, जिया नोज अबाउट इट, राइट. यू एलिसिटेट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम things and elements that are there around in your vicinity. Correct. So you can ask for an owl to hoot, you can ask for a dog to bark, or you can do whatever. आप में ताकत है तो एक काम करो, उसको ये करके बताओ. So अपना क्या है, we have to prove a haunting. अब मेरे घर पे वो आवाज़ आई नहीं, 5 मिनट रुके नहीं, तो ठीक है, तो फिर मैंने वो केस क्लोज ही कर दिया. There is a way, okay, मैं अभी बोलने के लिए बोल सकते हैं कि I destroyed the demon. हाँ, ऑफ कोर्स वही है, बट देन आफ्टरवर्ड्स आई हैव टू मेक श्योर अभी ये जो घर पे जाएंगे रात को, इनके साथ वापस से फॉलो नहीं होना चाहिए. तो आई हैव टू कैच, आई हैव टू डिस्ट्रॉय इट, नॉट ओनली इन द आउटर रेल्म बट एज शिवा सेड आल्सो इन पीपल्स माइंड्स. वो भी करना जरूरी है. आई कांट हैव देम, आई मीन गोइंग होम विदाउट अ क्लोजर. तो सब कुछ हो गया. आधे घंटे के बाद मैं गया ऊपर बेडरूम में, मेरी बीवी ऊपर सो गई थी. तो मैं जब गया ऊपर,
जस्ट टू चेक इन कि मेरी बीवी और मेरी बच्ची सो गई है, तो बीवी मेरे को पूछ रही है कि व्हाई डिड यू नॉक ऑन द डोर हाफ एन आवर अगो? आई सेड आई डिडंट नॉक. And imagine, I mean, you know, remember I asked him for a noise और इसने ऊपर जाके मेरी बीवी को परेशान किया. Thank God मेरी बीवी ने दरवाज़ा नहीं खोला, बिकॉज अगर खोलती तो इट वुड हैव बीन एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट Interaction, Yeah. प्रेजेंस. वो खुद ही डर दी. पहली बात तो हम लोग नीचे करके आ रहे हैं. Yeah, Right? correct. But these are scary experiences wherein, see, we are not really worried about ourselves, right, in any profession. Yes, yes. जब loved ones को जब ये होता है, परेशानी होती है, वो टाइम पे that gets scary. Yeah, so these are two cases that I बट can. देन ये सारे जो डीमंस होते हैं या जो स्पेशल एनर्जीज होती है, दे वुड नो योर वीक पॉइंट्स, राइट? एंड हेंस ये ऐसे ही करते हैं. Weak points, emotionally अगर weak हो, then I think so you create a window. ओके. Yeah, always give an analogy of atoms. Atom का structure जो है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स अंदर हैं in the nucleus and इर्द गिर्द में है इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट? आउटर शेल अगर इलेक्ट्रॉन्स का अगर कंप्लीट हो तो वो कभी किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, Correct. राइट? कैटलिस्ट बन जाते हैं या Yeah. तो जो भी है, आई मीन लाइट रहते हैं, ठंडे रहते हैं, आर्गॉन, नियॉन्स एंड ऑन. तो ये सब गैसेस हैं. बट द मोमेंट द आउटर शेल हैज अ सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके वो अटैच होता है डिफरेंट इसमें, या राइट? और फिर नया मॉलिक्यूल बनेगा. करेक्ट. तो वैसे ही है. अभी हमको यही एनालॉजी लेके हमको भी जानना है कि अपना आउटर शेल भी नेगेटिवली चार्ज्ड है. नेगेटिव आयंस बोलते हैं उसको. इसके लिए हमको पेट्री चोर, वो जो बोलते हैं आफ्टर अ थंडरस्टॉर्म सांस लेने बहुत अच्छा लगता है, सो दैट इज पेट्री चोर. सो दैट हैज एन इफेक्ट ऑन अस, नेगेटिव आयंस. सो अपना भी इर्द गिर्द जो ऑरा बोलते हैं, दैट्स नेगेटिवली चार्ज्ड. अगर आप कंप्लीट हो, आपका ये आप कंप्लीट इन योर सेल्फ, यूर अ कंप्लीट पर्सन, आप बहुत ठंडे होते हो, लाइट होते हो. रास्ते पे जाएंगे, कोई गाली देगा तो फिर भी आप उसको नजरअंदाज करो, जाने दो. यू बिकम द बिगर पर्सन, यू बिकम लाइटर, यू बिकम कूलर. बट अगर सरप्लस हो, आप बहुत गुस्सैल हो, बहुत एंग्री हो, तो आप सही नहीं सोचोगे. करेक्ट. आपके अंदर अगर लस्ट आ रहा है तो आप भले ही संत होने दो, लेकिन गलत टाइम पे गलत चीज़ करोगे. सो वो दैट इज सरप्लस. कमी हो, जैसे कि फियर या डिप्रेशन हो, तो उसके अंदर भी आप सही नहीं सोच पाते हो. सो दिस इज वन एनालॉजी आई कीप टेलिंग पीपल. सो दिस इज हाउ दे मैनिपुलेट यू. हाउ डू यू रीड ऑब्जेक्ट्स? साइकोमेट्री बोलते हैं या तो क्लैर टेंजेंसी बोलते हैं. नाउ साइकोमेट्री इज अ वेरी रियल आर्ट. Like suppose I mean just a few minutes back I had told you that अगर आप कोई surface को touch करते हो तो उसका texture, hardness, softness, wetness नहीं है, wet है कि नहीं है, या तो उसके अंदर surface layer में कोई static current है कि नहीं है, उसका temperature क्या है, आप आराम से जान पाते हो. तो उससे ज़्यादा डेटा क्यों नहीं मिल रहा है? कि उसके अंदर जो स्टोर्ड है इन्फॉर्मेशन, वो क्यों नहीं मिल रहा है? जैसे हम देखते हैं तो अगर मुझे कोई देखेगा, मेरे भी बाल लंबे हैं, जिया के भी बाल लंबे हैं, लेकिन हमको देख के स्प्लिट सेकंड भी नहीं लगता है जानने के लिए कि लड़की कौन है, लड़का कौन है, और टेंटेटिव उम्र कितनी है. और अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो उसके पहनावे से या लुक से आप उसकी एथनिसिटी भी बता पाते हो, राइट? सो कितना कोई छोटा है, कोई बड़ा है, अगर आपको ये डेटा सब देख के मिल रहा है, आप ऑब्जर्वेशन में और डेटा क्यों नहीं मिल रहा है कि भाई ये कहाँ से आया है, इसके इंटेंशंस कैसे हैं? उसी को तो प्रोफाइलिंग वगैरह सब कुछ कहते हैं, राइट? सो साइकोमेट्री इज अ वेरी रियल आर्ट वेरन यू कैन ट्राई टू रीड ऑब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट. वो एक दिन में नहीं आएगा. आप सडनली यहाँ पर हाथ लगा के बोलो हाँ ठीक है मुझे पता चला यहाँ पर कल सीन हुआ था, वो नहीं कर सकते हो. यू विल हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, गेट बैक एंड रीड. जैसे हम बोलते हैं इट हैज टू बी रिपीटेबल. तो रीड, यू डू समथिंग ओवर देयर ऑब्जेक्ट के साथ में एंड यू रीड इट एंड यू चेक कि आपको वही डेटा आया क्या. उसको डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं साइकोलॉजी एंड इवन इन साइंस ऑल्सो. लोग क्लेम करते हैं ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज करके रीड करना, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर कोल्ड रीडिंग बहुत ज़्यादा होता है. कि आपने देखा आपके तरफ से आया ऑब्जेक्ट, तो मैं वो रीड करके आपको बोलूँगा कि यार मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी लाइफ में बहुत तकलीफ है. दीज आर बार्नम स्टेटमेंट्स, सब पे लागू होती है, राइट? सारे प्रॉब्लम्स की जड़ आपके ना एक औरत है. बोलेगा हाँ, आप ऊपर से बहुत सख्त हो, अंदर से बहुत नरम हो. हाँ, These are most common sentences. Exactly. बोलोगे कि Every आप person goes आप through बहुत it. जल्दी भरोसा कर लेते हो, इसके लिए बहुत धोखा खाते हो. हाँ, so लगे भाई दिस पर्सन इज लुकिंग थ्रू माय सोल, राइट? सो दीज आर कोल्ड रीडिंग्स. आप में इतना दम है, आप इतना अगर साइकिक इतना अच्छा हो, आपको साइकोमेट्री या तो ये बराबर आता है, आप डबल ब्लाइंड खेलो. एक काम करो, 7 लोगों को बोलो अपने ऑब्जेक्ट लेके नीचे रखने को, आपको ब्लाइंड फोल्ड रखो. अभी आप ऑब्जेक्ट पिकअप करो और बोलो ये ऑब्जेक्ट किसका है. ट्रू. इफ आप इतना बड़ा 30 मार खानो, आप इतना बड़ा लेक्चर दे सकते हो, तो ये करके दिखाओ.
तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो ये नहीं होगा. कोल्ड रीडिंग कोई भी कर सकता है, मेंटलिज्म है. So, Ashwin, I wanted to understand one thing. What are the scientific procedures that you use while you do an investigation? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूँ या फिर व्हेन आई एम प्लानिंग ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, व्हाट आई लुक एट इज कि दोनों तरफ से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. कि जो ट्रेडिशनली होते आया है कि ये EMF, EVP, थर्मल, टेम्परेचर, ये वगैरह यूज़ करके एक जगह के बारे में पता चलना कि वहाँ पे कुछ EMF पोल्यूशन है क्या, या फिर उधर टेम्परेचर चेंज है क्या, टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है क्या. दिस एंड अलॉन्ग विद दिस एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. साइकोलॉजिकल, नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल, एक पूरा बायोलॉजिकल एक स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है, एक डेटा कलेक्ट करना ज़रूरी है. क्योंकि हमेशा हम लोग एक चीज़ जो भूल जाते हैं, जैसे सावियो भाई ने बोला, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द फिनोमिनन. वो खुद वो हॉन्टेड स्पेस के अंदर है एंड वो चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उसके अंदर भी चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं. वी कैन नॉट डिनाई दैट. सो व्हेन आई एम गोइंग आउट फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, मैं ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा आगे जाके मैं ये भी देखता हूँ कि मैं उसका हार्ट बीट कितना रहेगा, उसका ब्रेन वेव्स में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, उसको क्या फील हो रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्या वो कोरिलेट हो रहा है, उसका बॉडी फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहा है उसके साथ कोरिलेट हो रहा है क्या. इफ़ आई एम एबल टू डू दिस कि बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलस में भी कुछ तो चेंज आ रहा है एंड इंटरनल इंसान के अंदर भी कुछ चेंज आ रहा है, देन दैट इज एन इन्वेस्टिगेशन. देन दैट प्रूव्स कि हाँ, यहाँ पे कुछ तो है जो बाहर है, बाहर कुछ हुआ, उस चीज़ की वजह से इंसान के अंदर वो चेंजेस आया एंड दैट्स वाई द रीजन ही इज बिहेविंग लाइक दिस. ये जब ही होएगा तब जाके एक बोलता ना, हम लोग को पहले बात तो अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया नहीं गया है, जिससे हम लोग वो एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि पहले ये मेजर करेंगे, फिर ये मेजर करेंगे, साथ में हम लोग ये भी ऑब्जर्व करेंगे. ऐसे एक स्ट्रक्चर दिया नहीं गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टिगेशन को अगर इफ़ यू आर आस्किंग मी हाउ वुड आई इन्वेस्टिगेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड गिव इट अ स्ट्रक्चर एंड देन उसको दोनों तरफ से देखना चाहूँगा मैं, कि साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसका पूरा डेटा कलेक्ट करूँगा एंड देन ऑल द थिंग्स, ये डिवाइसेस यूज़ करके जो भी हम लोग को एक्सटर्नल स्टिमुलस का जो भी रेस्पॉन्स मिल रहा है, ये दोनों अगर साथ में हुआ, इफ़ देर इज़ अ comparison that can be created, if there is a repeatable pattern that can be created using these methods, then that is how I would love to investigate and that is what I would call an investigation. उसके अलावा तो सिर्फ आप जा रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ देखा आपने, कुछ फील किया आपने, बाहर आया, आप उसका स्टोरी बता रहे हो, दैट्स नॉट इन्वेस्टिगेशन, दैट्स जस्ट एन इवेंट. वो आप वहाँ पे गया, एक्सपीरियंस किया, वो आपका एक्सपीरियंस बता रहे हो, वो आपका नैरेटिव बता रहे हो. करेक्ट. इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको जांच करना पड़ेगा, जगह क्या है, जगह में क्या क्या है, इंसान कौन है, इंसान में क्या क्या फ़र्क आ रहा है, ये सब हम लोग जब भी ट्रैक करेगा, इसका डेटा पॉइंट कलेक्ट करेगा, फिर उसको जब भी ऑब्जर्व करने लगेगा, तब जाके एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा. Savio, most difficult entity you encountered? Not really, because I don't ascribe that much power to them. No hierarchy, nothing like that. So आज तक ऐसा कोई एंटिटी था नहीं जहाँ पर मुझे जैसे मैं बोला स्टेप बैक लेना है तो मैंने completely विदड्रॉ किया है. ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इवन इफ इट मीन्स यू एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस, यू नो दैट देयर एंटिटीज, इनविजिबल एंटिटीज, आपने उनको एनकाउंटर किया है, बट उनमें उतना कैपेसिटी या उतना पावर नहीं है जो आपको हार्म करे. येस, इफ यू टॉक अबाउट पावरफुल एंटिटी, या पैरानॉर्मल में हमेशा हम नेगेटिव सोचते हैं, बट देयर इज़ वन एंटिटी जो हमने राखनदार बोलते हैं इन कोकन साइड एंड गोवा, मैंगलोर. I have encountered a few Rakhandars like this who are actual deities and who are really powerful. They can unnerve you. उनका जैसे presence रहेगा ना side में, तो आपको पता चलता है no, this is something that you're not supposed to be messing around with. Because इतने stories हैं, इतने anecdotes हैं, इतने evidences हैं इनके कि, और मैंने खुद भी experience किया है. One of those entities helped me cross a river, not a river, a sort of a stream, जहाँ पर actually depth बहुत ज़्यादा था. एंड इट वॉज मैजिकल बिकॉज दूसरा दिन जब मैं वहाँ से आ रहा था तो वो फैमिली ने मेरे को बोल दिया, भाई यहाँ से नहीं जाना, डूब जाएगा. बोला लेकिन कल ही तो यहाँ पर कोई तो उधर फिशिंग कर रहा था और मुझे बोला कि यहाँ पे रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, तो उसके नीचे ये है दस क्या बोलते हैं रॉक्स है. और मैंने एग्जैक्टली वहीं पर पैर रख के इवनिंग टाइम में आया, लाइक अराउंड 6:37 जब सन डाउन हो रहा था, ट्वाइलाइट में.
लेकिन उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, और शाम के टाइम पे यहाँ पर कौन फिशिंग कर रहा है? सो इट वाज स्कैरी, आई कुड हैव ड्राउन्ड, बट देन ही हेल्प्ड मी. सो वो एक्नॉलेजमेंट हमेशा रहता है, बट दीज आर पावरफुल एंटिटीज, आई कैन टेल यू. So what happens, Ashwin? What happens when a person is possessed? सी पोसेशन बहुत अलग अलग टाइप के होता है. पोसेस करना का मतलब, वी शुड अंडरस्टैंड द वर्ड पोसेस. आई पोसेस दिस वॉच. मैं मेरे घर पे मैं कुछ चीज़ें जो मैं पोसेस करता हूँ. व्हाट डज दैट मीन? कि मैं तेरी बीवी तेरे को पोजेस कर हाँ, मेरी बीवी मुझे पोसेस करती है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच वी शुड अंडरस्टैंड द वर्ड पोसेस. हम लोग जब भी पोसेशन करके हम लोग देखते हैं, द फर्स्ट थिंग अपने जो दिमाग में आता है, इट्स एवरीथिंग दैट हैज़ बीन शोन बाय द मूवीज, या फिर जो भी इंटरप्रिटेशन हुआ है पोसेशन का, वही अपने दिमाग में आता है. हम लोग उसको साइड में रख के व्हेन वी टेक अ केस एंड व्हेन वी एक्चुअली लुक एट व्हाट अ पोसेशन इज, वो पोसेशन 99% ऑफ द टाइम वो कुछ भी बाहर कुछ आपको दिखेगा नहीं. इट्स ऑल इनसाइड. Yeah. वो दैट पर्सन में टॉक इन डिफरेंट साउंड, वो जैसा सैव्यू भाई ने बोला, सुपर ह्यूमन एबिलिटीज वो एग्जिबिट कर सकता है. ज़रूरी नहीं है कि ये कोई एक्सटर्नल पोसेशन ही हो, कि कोई स्पिरिट ने पोसेस किया ही हो. कुछ ऐसे भी चीज़ें हुआ है जिसमें आई एम एट अ सर्टेन प्लेस एंड समथिंग ट्रिगर्ड इनसाइड मी, मे बी अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स, कुछ भी हो सकता है. समथिंग ट्रिगर्ड इनसाइड मी एंड मुझे पता नहीं मेरे पीछे से कुछ आ रहा है या फिर मेरे पीछे से कुछ गाड़ी आ रहा है, पता चले भी नहीं, आई मूव्ड एंड देन दैट थिंग हैपन. सो पोसेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड, जो मैं बोलना चाहूँगा कि इट कैन हैपन टू यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आप जैसा इमोशनली वीक हो, फिजिकली ड्रेन्ड है, इमोशनल वीक है, ऐसे कंडीशन में आप हो, तो दिस एक्सटर्नल स्टिमुलस या फिर जिस एंटिटी जो हम लोग बोल रहे थे, इंटेलिजेंट स्पिरिट, इट फाइंड्स इट ईजियर टू मैनिपुलेट अस, नॉट पोसेस अस बट टू मैनिपुलेट अस. उस मैनिपुलेशन में देयर इज अ वे ऑफ बिहेवियर जो हम एक्सिबिट करते हैं. वो बिहेवियर को जब हम एक्सिबिट मतलब वो बिहेवियर जब सामने वाला देखता है, तब वो अपने को बोलता है कि दिस पर्सन इज पोसेस्ड. Can entity and soul stay together in one body? Yeah, we are a soul, right? We are a soul and we have a body. So we are an entity in ourselves. But if you're trying to say a second entity, Second entity. नहीं, वो मुश्किल है. They can attach to your auric fields, right? But they cannot enter inside. Why? Because अंदर तो already एक soul है. We are already a person inside. अंदर और एक दूसरा नहीं आके रह सकता है. तो फिर मेंटल इलनेस हो गया, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर हो गया, जिसको उसने आपके माइंड को हावी करके रखा हुआ है, ब्रेन को ये करके रखा है, आपके फ्रंटल और पैराइटल लोब्स में खेल रहे हैं, राइट? बीच में वो अपना इसमें क्या अमिगडाला को ट्रिगर करेगा, तो आपको कॉर्टिसोल रेस करेगा आपके अंदर, आपको लगेगा कि भाई कुछ तकलीफ हुआ है. बट इफ यू टॉकिंग अबाउट एक्चुअल पैरानॉर्मल एंटिटीज इन वन बॉडी, नहीं. लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ अटैचमेंट होता है, जैसे शिवा बहुत बात कर रहा था. तो पोजेशन क्या है? इट्स लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ अटैचमेंट, एंड देन आफ्टर यू लूज योर आइडेंटिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. देन आफ्टर यू कैन ईदर बी डिमोनिकली पोजेस्ड और एंजेलिकली पोजेस्ड. Okay. What is difference between astral dream and spiritual dream? They are different. Spirit is a motivation to a person, राइट? कोई अगर अच्छे से खेल रहा है तो उसको स्पोर्टिंग स्पिरिट बोलते हैं. कोई अच्छा नाच रहा है तो उसको स्पिरिटेड परफॉर्मेंस बोलते हैं, वेल स्पिरिटेड, राइट? सो स्पिरिट इज ओनली अ मोटिवेशन. तो whatever in that realm, I mean whatever good you throw out in the universe, बोलते हैं कार्मिक बैगेज बोलते हैं, राइट? वो आता है वापस से. सो whatever good you throw out in the universe is going to come back somewhere or the other. अगर आप बुरा करोगे तो कहीं ना कहीं तो बुरा होगा. So that is the spiritual realm, wherein you're throwing in good intentions and good works in the universe. So that will return as good. But astral realm is different. Astral realm is much more physical in nature, wherein you're trying to tap into the collective intelligence of the universe. So उसमें बहुत कुछ readings वगैरह बहुत कुछ आ जाते हैं. So that you can travel astrally, you can go to different dimensions. अभी अगर मैं बोल दूँ कि अब depths of the Mariana Trench, can you see? And you'll immediately be there. If I say right now, you're on top of Mount Everest, immediately you'll start feeling cold. So that is the astral realm. It's not just your thoughts, but there's some part of you that actually travels. Okay. So Jia, what exactly is psychic intuition? And for that matter, you can say third eye. What is that? I think third eye, basically it's like
a part of your senses that gets activated. Like for example, third eye may, what I know is your vision, like the clairvoyance part gets more activated, where you get to see clearly, which normal people can't. Like the realm where not every person can see कि यहाँ पे कुछ है करके. I think that gets activated ज़्यादा. And intuition is the inner feeling. I think that every human has it. Correct. बट समटाइम्स लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर साइकिक है कोई तो उनमें वो ज़्यादा होती है, स्ट्रांगली होती है कि इफ़ आई एम गोइंग टू अ प्लेस आई नो दिस इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज दैट इज़ वॉट माई इंट्यूशन सेज. तो दैट्स जस्ट द डिफरेंस. Intuition, I'm sorry, the third eye, that is channeled by your ajna. That's your third eye chakra. Whereas intuition comes more from the sahasrara and your manipura. Okay. So now the end part of this podcast. Okay. I'll ask one or two questions and you guys can answer. Okay. So, Savio, how do you tackle non-believer or skeptic person? By respecting the beliefs. I mean, it's as good as that. I mean, I can't force anybody, right? Whoever's believing, you take it. Who is not believing, I guess there'll be a time when that person will actually experience certain things and then after start believing. It's like that. I mean, we have so many different religions and cultures in the world. If we all start fighting over that, I mean, then after you see how chaotic or dystopian the world can be. So I believe in, okay, fine. If somebody is not believing in something, it's good. Because I started as a rational, I started as a skeptic myself. But precept over precept, idea over idea, and knowledge over knowledge, I've built something right now which is my legacy. I'll wait for that people to experience it themselves. Okay. Thank you so much. This has been a very wonderful episode. More of a myth breaker again. We got to know a lot of things about spirits, paranormal activities, what parapsychology actually works in, psychics, how they behave in day-to-day life. And it's just a normal life, a normal human being that we are, with a special ability. That's how we count it. So thank you so much, all three of you, Savio, Ashwin, Jia, and yeah, best of luck. Thank you for having on the show. Yeah. Thank you so much.